السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا قرآن لرننگ بیسک ٹو ایڈوانس چینل پر ویلکم ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ العلق کی ابتدائی 8 آیات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی لفظ بلفظ تجوید کے ساتھ اور تلاوت کے انداز میں پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیں پڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حمزہ زیر قاف اق، را زبر حمزہ را، اقرأ، اقرأ، قاف کو موٹا کریں گے اور حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اقرأ بسم، بسم، سین کے اندر سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ با کے بعد جو الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، با کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ بسم ربک الذی، ربک الذی خلق، خلق، قاف کو ساکن کر دیں گے وقف کی حالت میں اور ہلا کر پڑھیں گے۔ خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان، کیا پڑھیں گے؟ خلق الانسان، خا کو اور قاف کو دونوں کو موٹا کریں گے اور انسان نون کے اوپر گنہ کریں گے۔ انسان، اس طرح سے یہاں گنہ کر کے پڑھیں گے۔ خلق الانسان من علق، من علق، یہاں من علق اس طرح نہیں پڑھنا، اس کو یہاں گنہ نہیں کرنا، من کے اوپر بغیر گنہ کیے پڑھیں گے۔ من علق، علق، عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف دو زیر قن، علقن، اور وقف کریں گے، قاف ساکن ہو جائے گی وقفن۔ علق، علق، علق نہیں، علق، عین کی آواز آئے گی اور قاف کو ساکن کریں گے، اس کی آواز آئے گی علق، علق۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اقرأ، اقرأ، یہ وہی لفظ ہے جو سورہ مبارکہ کا پہلا لفظ بھی تھا، تو اس کو پڑھیں گے اقرأ وربک الاکرم، وربک الاکرم، واو زبر و، را زبر با، رب، ورب، با پیش بو، ورب، کاف زبر لام کل، وربک، حمزہ زبر کاف اک، وربک الاک، را زبر، را کے اوپر اب یہاں زبر ہے، را کو پر کریں، را زبر را، وربک الاکرم، میم پیش مو، وربک الاکرم، اور وقف کریں گے، میم ساکن کر دیں گے وقفن، وربک الاکرم۔ پوری آیت کو دیکھیں، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، الذی، ذال کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، اس کے بعد یا مدہ ہے، الذی علم، علم، علم نہیں، علم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ علم، اور لام مشدد ہے، لام کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ علم بالقلم، بالقلم، قلم، قلم لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان، نون کے اوپر گناہ ہوگا، علم الانسان، اور سین کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر مد کریں گے کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے۔ ما لم یعلم، کیا پڑھنا ہے اس لفظ کو؟ ما لم یعلم،
मीम ज़बर अलिफ मा, लाम ज़बर मीम लम, मालम, या ज़बर आइन या, लाम ज़बर मीम लम, यालम, मालम यालम। पूरी आयत को देखें, अल्लमल इंसान मालम यालम, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, कल्ला, ला को आपने 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है, कल्ला इन्नल इंसान, नून मुशद्दद को गुना करें और यहाँ ये जो नून साकिन है इसको इख्फा करके पढ़ें। ये लफ्ज़ कितनी दफ़ा गुजर चुका है, ये लफ्ज़ 2 मरतबा पहले भी आज की इस वीडियो में ही गुजर चुका है और अब तीसरी मरतबा आ रहा है। इस वजह से ये जो लफ्ज़ बार बार रिपीट होते हैं इनको आपने बहुत अच्छे से देखना होता है, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा ध्यान से पढ़ लें उस लफ्ज़ को, एक लफ्ज़ को अच्छे से पढ़ लें, तो अगर वो 100 मरतबा आएगा तो आपको 100 मरतबा पढ़ते वक्त मुश्किल नहीं होगी और आपको 100 लफ्ज़ एक लफ्ज़ याद करने की वजह से ज़ुबानी याद हो जाएंगे, पढ़ना आ जाएंगे। इस वजह से जो लफ्ज़ मुकर्रर हैं यानी बार बार तकरार के साथ आते हैं उनको आप बहुत ध्यान से सीखा करें, ध्यान से पढ़ा करें। इन्नल इंसान, नून को पर यहाँ इख्फा करें, इंसान लयतग़ा, लयतग़ा, इसके भी तोड़ जोड़ देखें, लाम ज़बर ला, या ज़बर ता, यत, लयत, गैन खड़ी ज़बर गौ, लयतग़ा, ता को भी मोटा करें और गैन को भी मोटा करें और ता को हिलाकर पढ़ें, क्योंकि ता जब भी साकिन होता है ता को हिलाकर पढ़ा जाता है, क्योंकि ता हरूफे कलकला में से है, इसे हिलाकर पढ़ें। लयतग़ा, लयतग़ा, पूरी आयत को देखें, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, आगे देखें, अर्रआहु इस्तग़ना, अर्रआहु इस्तग़ना, इसके तोड़ जोड़ देखें जरा, मुश्किल है। हमजा ज़बर रॉ, और ये जो हमजा है इसको रॉ के साथ मिलाएं, नून जो दरमियान में लिखा है इसको नहीं पढ़ना, हमजा को डायरेक्ट आपने रॉ के साथ मिलाकर पढ़ना है। हमजा ज़बर रॉ, और रॉ ज़बर रॉ, और रॉ, और रॉ मुशद्दद को किस तरह पढ़ते हैं, और रॉ, हमदा खड़ी ज़बर आ, हमदा को लंबा करें क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है, और रॉ आ, हा पे सीन हुस, और रॉ आ हुस, ता ज़बर गैन तग, और रॉ आ हुस तग, नून खड़ी ज़बर ना, अर्रआहु इस्तग़ना, अर्रआहु इस्तग़ना, और वक़फ़ की हालत में भी इसको इसी तरह से ही पढ़ेंगे, यानी इसके अंदर वक़फ़ की हालत में भी इसको इसी तरह पढ़ा जाता है और रवा भी इसी तरह ही पढ़ा जाएगा। अब देखें यहाँ ये जो गैन है इसको आपने हिलाकर नहीं पढ़ना और दूसरा आपने इसको मोटा करके पढ़ना है और रॉ को भी मोटा करके पढ़ना है क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है और हमदा को लंबा करना है क्योंकि हमदा के ऊपर खड़ी ज़बर आ रही है। अब पूरी आयत को देखें, और नून को नहीं पढ़ना, ये जो नून लिखा है इसको नहीं पढ़ना, हमजा को रॉ के साथ मिलाना है। अगली आयत को देखें, इन्ना, इन्ना नून के ऊपर गुन्ना होगा। इला रब्बिका रुजआ, इला, ला को लंबा करें, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है इस वजह से इसको एक अलिफ के बराबर मद करें। इला रब्बिका रुजआ, रब्बिका रुजआ, रुजआ, जीम को हिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि जीम जब भी साकिन होता है जीम को हिलाकर पढ़ा जाता है, और रॉ को मोटा करेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर पेश है, और आइन को लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि आइन के ऊपर खड़ी ज़बर है। पूरी आयत को देखें, इन्ना इला रब्बिका रुजआ,
इन्ना इला रब्बिका रुजआ। अब इस सारे सबक को तिलावत के अंदाज में भी पढ़ना देख लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना इन्न इला रब्बिका रुजआ। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नई तशरीफ लाए हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।